Now, what Yes, will ma'am. happen? In the last class, I think we have done with the steric number 4. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, बेटा स्टेरिक नंबर 4 इज डन. टेट्राहेड्रल वाला केस जिसमें हमने 4 के 4 बॉन्ड पेयर या 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर. All the three cases we have done. Now we are toward the steric number 2. पहले 3 कर लेते हैं, है ना, फिर करते हैं 2. डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं. फर्स्ट विल गो फॉर द स्टेरिक नंबर 3. स्टेरिक नंबर 3 का मीनिंग क्या हुआ कि लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू द 4 ओनली. नाउ इसमें टाइप 1, जो टाइप 1 रहेगा, that type 1 is AB3. AB3 means lone pair would be 0 and your bond pair would be 3. 4 वाला केस है, स्टेरिक नंबर 4 तो हमने कर लिया है ना, 3. ठीक है, तो ये वाला केस. And the example of this is we have discussed it in the last class also, जब हमने BH4 negative बनाया था. तो this is a BH3. In the place of BH3, you can also take it as BF3, boron trifluoride. So in the formation of the boron trihydride, boron is the atomic number 5, and the electronic configuration of the boron is valence shell only I am writing, 2s2 and the 2p1. When you will write down the ground state electronic configuration for the boron, it is having the 2 electrons in the 2s orbital and it is having the 1 electron in the 2p orbital. This is a ground state. In the excited state, one of the electron from the 2s orbital will get shifted to the 2p orbital. So this is a 2s and this one is the 2p. Okay, beta? So first step is, as we have done in the last class, the first step is the hybridization. तो पहले क्या होगा, these three orbitals will mix among each other. उससे क्या होगा, वो सेम एनर्जी के बन जाएंगे. ठीक है, सेम एनर्जी के बन जाएंगे, फिर उसके बाद उनका बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ. या मैंने और BF3 इसलिए लिखा है बिकॉज BF3 एंड द BH3 बोथ आर हैविंग द सेम ज्योमेट्रीज एंड सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड इसमें चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, एंड दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द बोरॉन. both are having the same geometries. Let me tell you the orbital diagram for this. And regarding the orbital diagram, one of the 2s orbital and then is the 2p orbital. What the examples of 2p we have to take? This is the 2px. This is the plus and minus. This is the 2py. These two orbitals mix with each other. After mixing बिल्कुल वैसे ही shape के orbitals बनेंगे, s and p, plus and minus. So this is now the 3 orbitals are combining, so 3 orbitals are formed. sp2 hybrid orbitals. sp2 s hybrid orbitals, and among these sp2 hybrid orbitals, the one very important thing is, beta, all these are having the electrons, one electron each. So I am writing here with the white color the one electron present in them. So after the hybridization, what is the next step? Who is going to tell me what is the next step after the hybridization, beta? Ma'am, orientation. The second step is a orientation. Orientation mean to say अब 3 orbitals को अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करना है, स्पेस में इस तरह से रखना है कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स है ना, इनमें रिपल्शंस ना हो, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो देखो 3 ऑर्बिटल स्पेस में कैसे रखे जाएंगे जब उनमें रिपल्शन ना हो. जैसे आप ए का पैटर्न बनाते हो ना, सिंपली वैसे इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज द प्लस लॉब, दिस इज द माइनस लॉब, दिस इज द प्लस लॉब, दिस इज द माइनस लॉब, दिस इज द प्लस लॉब, this is the minus lobe. So this is the orientation, and
All these three orbitals are having the one electron. अगर मैं इसको ऐसे balloon diagram में ना बनाऊं, it is a this way. See, and this, and this. These bond angles are how much? 120 degree. 120 degree. All these three bond angles are 120 degree, and for the sake of simplicity, we can combine them. ऐसे इसकी boundary बना देंगे और ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. Let me erase this one to make a okay, this one. So this is, if this is A and these are the B. The name of this geometry is a trigonal planar. Planar. Yes, the name of this geometry is the trigonal planar. Hybridization is sp2, as I told you, and the bond angle is the 120 degree. Okay, and here the hybridization is hybridization, sorry, sp2, and bond angle is 120 degree. ओके जी, तो दिस इज द फर्स्ट केस. सिमिलर मैनर में ना, अच्छा पहले इसकी बॉन्डिंग भी कर ले फिर बताते हैं. तो इन द केस ऑफ द थर्ड स्टेप विच इज अ बॉन्डिंग में लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट बॉक्स डायग्राम. इफ दिस इज द बोरॉन हैविंग द 1 electron in the 2s and the 2 electrons in the 2p, and these 3 orbitals are mixed, and this is the sp2 hybridization. Then after the orientation, one electron is given by the monovalent atom. अगर मैं BH3 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये 3 हाइड्रोजन होंगे. ठीक है. एंड हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज, देखो इसको ऐसे लिखोगे. ये तो आपने पहले ही बना लिया ऑर्बिटल डाल ऐसे. These 3 are the hydrogen atoms. And regarding the signs of the xi, there will be the plus, plus, plus. हाइड्रोजन में भी प्लस प्लस होगा, दैट्स वाई उसमें ओवरलैपिंग हो रहा है. सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है, और यहाँ होगा तीनों में माइनस. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BH3 ट्रायगोनल प्लानर. ये तो सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible clearly to everyone? Yes, ma'am. So maybe the student who are complaining about the voice, बेटा you have to just check out your connection, और वो भी 1-2 मिनट में आपके यहाँ भी नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो नेक्स्ट ना एक मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना देती हूँ BF3 का. In the case of BF3, what is happening? This is the boron, and this is the 3 orbitals of the boron, as we were saying earlier, with the sp2 hybridization and the 1 electron each. Now what would happen if you are having the fluorine? If you will take out the fluorine, what the fluorine is looking like? Fluorine में क्या है देखो, fluorine is a 2s2 and the 2p5. अब 2p5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 3 पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर 4 5, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. दैट्स व्हाई वी वर सेइंग ना कि फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट है. ये जो फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 2pz में, तो फ्लोरीन का 2pz कंबाइन करेगा इससे ऐसे. जिसको भी थोड़ा सा टिल्टेड बना देना चाहिए, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में हो गया है. उससे क्या होगा, एक जैसी ज्योमेट्री दिखेगी सबकी. Just like this. This type. So this is again plus minus, plus minus, plus minus combination. This is also plus plus plus, and here it is minus minus minus. So it is just like the same. But वहां पे आप क्या कर रहे थे, बोरॉन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस में हो रहा है? बोरॉन का sp2 hybrid orbital and फ्लोरीन का 2pz orbital. In the earlier case, the combination किस किस में था? Here in the formation of BH3, boron का sp2 hybridized orbital is combining with the 1s orbitals of hydrogen.
ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस, अदरवाइज द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम. So all the one more thing very important, if unless and until the number of valence electrons won't change, हम number of unvalence electron change नहीं होंगे अगर, और आपका कब नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, जब आपका एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा, तब तक हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी. मैंने आपको BH3 पढ़ाया है, BCl3 पढ़ाया है. मान लो आपको एग्जाम में आ गया BBr3 या आपको एग्जाम में आ गया BI3, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. बोरॉन सब में सेम है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें भी फ्लोरीन की तरह ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैम यस बेटा. मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? ठीक है, उनमें भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 ही हैं. ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे या 1 रहेगा उसमें, तो मोनोवैलेंट रहेगा और स्ट्रक्चर सेम आएगा. तो अगर आपको BBr3 BCl, ओके, BBr3 BCl3 और BI3 के बारे में भी पूछ ले तो भी सेम आंसर है. लेट अस सपोज उसने बोरॉन की जगह पूछ लिया AlCl3. अब आप देखो ना, बोरॉन के ही तो ग्रुप को बिलोंग करता है एल्यूमिनियम. both the boron and the aluminium are present in the same group only. तो boron, aluminium, gallium and the indium. ठीक है, इन सभी की भी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री वही होगी जो आपके पास उसकी है BCl3 की. तो ये बात ध्यान में रखनी है. ये एग्जांपल चाहे हमने नहीं भी पढ़ी है, अनलेस एंड अनटिल आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आपके पास है स्टेरिक नंबर 3 की टाइप 2 है AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. एग्जाम अगेन द स्टेरिक नंबर इज 3. स्टेरिक नंबर इज 3 मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम है 3. अब की बार लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है. लास्ट वाले केस में कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं था, बट नाउ 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट एंड द 2 बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल इज SnCl2. व्हाट इज द नेम ऑफ Sn? क्या होता है Sn? मैम टिन। टिन को बोलते हैं. टिन कॉमनली इसको बोलते हैं, वैसे सिंबल के अकॉर्डिंग इसको स्टेनस बोलते हैं. ठीक है, तो स्टेनस क्लोराइड या टिन क्लोराइड कुछ भी बोल सकते हो. अब इसमें देखो हाउ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट्स स्ट्रक्चर. कैसे पता लगाएंगे? अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही चलेंगे. अब मैं बॉक्स डायग्राम्स नहीं बनाऊंगी. तो सबसे पहले Sn देखो, तो सी द पोजीशंस ऑफ द टिन. अगर आपको नहीं भी एटॉमिक नंबर याद आ रहा है इसका, तो इट्स ओके. किस ग्रुप को बिलोंग करता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ठीक है, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 एंड NP2. कार्बन के केस में 2s2 एंड 2p2 होती है, तो या 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5s2 एंड 5p2. ठीक है, तो दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस. अब यहाँ पे एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगाया जाएगा? ये आपको पता लगेगा मोनोवैलेंट एटम से. कितने मोनोवैलेंट एटम है आपके पास? 2 मोनोवैलेंट एटम है. क्या इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? यस, ऑफ कोर्स इट इज हैविंग द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक द सेम एज दैट ऑफ द मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट, उस केस में एक्साइटेशन नहीं होगा. आप देखो ना, टिन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि P में है, तो टिन 2 बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ, और एक इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1 देयर विल बी द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन above the 10. ठीक है, तो 1 is the lone pair of the electron and the 2 are the bond pair of the electrons. तो this is the SnCl2 structure. अब देखो इसमें जब तक लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 3 रहेगा, तब तक जो आपका आंसर है वो आपका आंसर ट्राइगोनल प्लानर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 120 डिग्री ही आएगा. ठीक है, लॉन पेयर है तो उसमें लेस देन हो जाएगा. तो यहाँ पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम तो 3 है, मतलब स्टेरिक नंबर तो 3 है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब कितनी स्पीशीज? यस, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री में देखो, अगर आपको ऑप्शन में ट्राइगोनल प्लानर मिल जाए तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है, बट द मोस्ट करेक्ट आंसर इज द डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर. डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर का मतलब हो गया कि लॉन पेयर जो है ना, हमने लास्ट क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पोस्टुलेट किए थे. जो आपका लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर रिपेल करता है इस बॉन्ड पेयर को.
तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शंस हैं वो ग्रेटर देन होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, ये आपको पता है। तो जब भी इसको पुश करेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री आता है। यू नीड नॉट टू गो फॉर के कितना होता है, जस्ट यू हैव टू राइट ओनली द लेस देन 120 डिग्री। और अगर आपके पास ऑप्शन आएंगी तो वो ऐसे ही ऑप्शन देगा जिसमें कोई एक ऑप्शन 120 से लेस होगा और बाकी ज्यादा होगी। कोई इसके केस में आपसे ये नहीं पूछेगा कि 117 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस मच ओनली। ऐसे कोई भी, अब मैंने टिन की एग्जांपल ली है, मान लो तुम्हें पेपर में टिन नहीं आया, तुम्हें पेपर में सिलिकॉन क्लोराइड आ गया, मान लो आपको एग्जाम में पूछ रहा है वो SiCl2 का बता दो, या एग्जाम में पूछ रहा है GeCl2 का बता दो, ठीक है, तो इट इज अ वन एंड, या एग्जाम में पूछ रहा है PbCl2 का बता दो, तो ऑल आर हैविंग द सेम केसेस, तो सारे बिल्कुल इसकी तरह ही होंगे, कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं है इसमें, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एंड द सराउंडिंग एटम्स आर गोइंग टू डिटरमिन द ज्योमेट्री। बाकी तो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने हैं वही डिटरमिन करेंगे, बट अगर सराउंडिंग एटम भी मोनोवैलेंट है तो वैसे आप इसमें एस्टिमेशन लगा लोगे। तो इज दैट क्लियर अबाउट द स्टेरिक नंबर 3? स्टेरिक नंबर 3 इज ऑल डन। इसमें दो ही केसेस हैं, ऐसा कोई केस नहीं होता AB टाइप, यानी कि जिसमें दो लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर हो। ओके, तो इसमें 2 ही केसेस हैं ओनली। तो इज दैट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट थर्ड इज द स्टेरिक नंबर। मैंने थर्ड इसलिए लिखा है, फर्स्ट नंबर आई हैड गिवन टू द स्टेरिक नंबर 4 और उसके 3 केसेस थे। सेकेंड नंबर आई हैव गिवन टू द स्टेरिक नंबर 2, 3 फिर 2, 3 वाला केस हमने 2 में पढ़ा था, वो आपकी मर्जी है, इट्स एनी हाउ, आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। स्टेरिक नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2, ठीक है, यानी कि स्पीशीज कैसी होगी, AB2 टाइप होगी। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 होगा, एंड दिस इज अ केस वेयर देयर इज अ लोन लॉन पेयर एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर, एंड आंसर इज अ 2 ओनली। So first of all, the example of the steric number 2, and here it is the sp hybridization. Steric number 4 में हमने sp3 hybridization पढ़ी है, then is sp2 hybridization, now it is a sp hybridization. sp hybridization में, अच्छा हाँ एक बात और, वैसे ये पता ही होगी बट स्टिल आई एम राइटिंग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन्स के केस में होती है। लेट मी राइट ओवर टू द बैक स्लाइड्स ओनली, याद रखना, ठीक है, ये तो हमने BH3 और उसका केस पढ़ा है ना, बाकी लेट मी डू इट ऑन अ लास्ट स्लाइड। ऑल द एल्कीन्स, जितनी भी एल्कीन्स हैं, अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, अंडरगो sp2, हाँ जी, sp2 hybridization. Let's take the one of the example बेटा, if I am taking the ethane, इथीन क्या हो गया, C2H4 हो गया ना, तो पहले तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना लो, फिर उसके बाद जितने इसमें वैलेंसी पेंडिंग है उतने हाइड्रोजन लगा दो, एंड जस्ट काउंट द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो एक कार्बन कर रहे हैं तो 3 सिग्मा हो गए, तो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लानर होगा, और यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और पाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो साइड वाइज ओवरलैप होता है। मैं आपको एल्काइंस में अभी करके बता देती हूँ, अदरवाइज जब आपका हाइड्रोकार्बन पोर्शन स्टार्ट होगा तब हम फिर से इसको स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. sp हाइब्रिडाइजेशन में भी ये पॉइंट लिख देते हैं कि all the alkynes undergo sp hybridization। सारी की सारी एल्काइंस जो हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगी। Let me take the example of the first alkyne. This is a C2H2 and the name of this is a ethyne. Ethyne is a common name. Ethyne is a IUPAC name and the common name is a acetylene. और कई बार यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कॉमन नेम एसिटिलीन से समझ ही नहीं आता उनको कि ये इथीन है या इथाइन है। In order to draw its structure, first you have to draw the C triple bond C,
उसके बाद एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड पे, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है. ओके, this is again sigma bond and these two are called as a pi bond. So this is a 2 pi and the 1 sigma bond. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the 2 pi, let's study its structure also. कैसे बनता है, कैसे इसमें ओवरलैप होता है. Now I am going to write the carbon 1. Both the carbons are there, so I am going to take the one as a C1 and दूसरे को C2 ले लेंगे. Carbon 1 excited state directly मैं लिख रही हूँ. Carbon 1 excited state में there is a 1 electron in the 2s orbital and there are the 2 electrons in the 2p orbital. And then is a C2 in the excited state. There is again the 1 electron in the 2s orbital and there are again the 2 electrons in the 2p orbital. Okay, and first the hybridization will take place, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया. देखो S और कितने P मिक्स करने हैं ना, ये मोनोवलेंट से डिसाइड होता है. अब इसका पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करी है. मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन वाज ओनली टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. हाइब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाया गया, मॉलिक्यूल तो मिल चुका था, उसके बाद उसको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया. तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लो. एक कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें. तो पहले इतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होगी बस इसमें. थर्ड वन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक S और एक P. तो दिस इज अ sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा सबसे पहले एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओरिएंटेशन होगा. बाकी मिक्सिंग तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले था. दिस इज अ 2s विद द 1 इलेक्ट्रॉन. इसमें कौन सा p मिक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे sp2 में हमने देखा s के साथ px और py मिक्स हो रहा था. sp हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ pz मिक्स होता है. ठीक है, मैंने इसको इसके साथ मिक्स करना तो ऐसे लिख दिया. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ऑर्बिटल बनाते हो तो राइट साइड पे प्लस होता है जैसे नंबर लाइन में होता है, या लेफ्ट साइड पे माइनस होता है. ठीक है, तो 2pz इसमें मिक्स होता है. अब 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 2 ऑर्बिटल्स ही नए बनेंगे. ठीक है, तो these are called as this time the sp hybrid orbitals. These are the sp hybrid orbitals. Now what happened to these sp hybrid orbitals? So first of all these two sp hybrid orbitals gets orientation होगा इनमें. अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन पे, 2 कार्बन थे ना ऐसे, तो वो कैसे रहेंगे कि उसमें कम रिपल्शन हो. बिल्कुल सीधी सी बात है, लीनियर है ना. लीनियर में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि हर उसमें कोई भी रिपल्शन ना हो. तो दिस इज अ ज्योमेट्री. ये एक कार्बन के 2 ऑर्बिटल हैं जो लीनियर अरेंजमेंट में आ गए. ठीक है, इसका 1 रिमूव कर देते हैं. तो ये क्या अरेंजमेंट आ गया, ओरिएंटेशन लीनियर अरेंजमेंट आ गया. लीनियर आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया. लास्ट में ओरिएंटेशन लास्ट स्टेप में बेटा बॉन्डिंग होगा. तो बॉन्डिंग के टाइम पे हम दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं. लेट मी टेक द ऑर्बिटल्स ऑफ द 1 कार्बन एटम फर्स्ट. दिस इज द कार्बन 1 and then are the orbitals of the second one. This is the carbon 2. ओके, बाकी अंडरस्टूड ही है कि एक एक तो हाइड्रोजन दोनों साइड आ जाएगा. तो दिस इज अ 1 हाइड्रोजन ओवर टू दिस साइड and the other hydrogen over to the this side, 2 hydrogens. And after that हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बन गया. एक एक कार्बन पे एक एक ऑर्बिटल पहले बनाओ अनहाइब्रिड. देखा था ना आपने, मैं अभी लिख भी देती हूँ उनके नाम ऊपर. देखो अब कार्बन में तो सॉरी 1 मोर आएगा ना. तो ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं अभी, ये सारे क्या बन गए जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. दीज आर कॉल्ड यस अनहाइब्रिडाइज्ड. बिल्कुल सही, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. कार्बन के 4 होते हैं ना, तो इसमें से एक p और एक s को मिक्स हो गए तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन के. अब इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को देखो आपने कैसे लिखा. एक को तो ऐसे लिख लिया इस ओरिएंटेशन में. अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो ऐसे साइड वाइज ओवरलैप हो गए. अब दूसरा इससे ऑपोजिट है, यानी कि दूसरे को हम ग्रीन कलर से ऐसे लिख लेते हैं. तो ये ग्रीन कलर वाला ग्रीन कलर के साथ बॉन्ड बना लेता है. तो ये वाले 2 आपके बन गए पाई बॉन्ड.
और पाई बॉन्ड का, जैसे हमने सल्फेट की स्ट्रक्चर भी देखी थी, पाई बॉन्ड का कोई ऐसे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में लेना देना नहीं होता, वो सिग्मा बॉन्ड का ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो येलो वाली डायग्राम है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन 1 कार्बन 2 एंड हाइड्रोजन, वही है लीनियर स्ट्रक्चर। ये ऊपर जो इसके पाई एंड ऑल बना हुआ है, दीज आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व। ओके, तो दिस इज द बॉन्डिंग एंड द ओरिएंटेशन फॉर द इथाइन। तो इज दैट क्लियर? अब मेरे ख्याल से अगर इथाइन का समझ में आ गया तो इथीन में भी कोई बिग गेम नहीं है। ट्राइगोनल प्लानर बना के एक एक बस ऑर्बिटल्स को ऊपर दिखा देना, बाकी दैट वी विल डिस्कस इन द ऑर्गेनिक आल्सो। तो ये क्लियर है? Yes, ma'am. And some of the example you can also take from this steric number 2 case, and those examples are like जैसे BeCl2। वैसे तो देखो, जब आपको मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि डिफरेंट डिफरेंट इसकी फिजिकल स्टेट है, तो डायमराइज होता है नहीं होता, कैसे पॉलीमर बनेगा नहीं बनेगा, वो बात की बात है। बट नॉर्मल अगर मोनोमर देखा जाए तो ये ऐसे है। तो दिस इज अ, Ma'am, barium chloride. क्या बेटा? बेरिलियम डाइक्लोराइड, हाँ, BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर वो देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। तो इसमें दो मोनोवेलेंट एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दिस इज अ लीनियर। ZnCl2 आप बनाओगे, तो दिस इज अ ZnCl एंड Cl। आप CO2 की स्ट्रक्चर बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बट आपको तो सिग्मा बॉन्ड से देखना है स्ट्रक्चर। तो ऑल दीज आर द लीनियर विद द sp हाइब्रिडाइजेशन एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। और इसमें कोई भी लॉन पेयर वाला केस नहीं होता। देर इज अ नॉट केस 2 फॉर द स्टेरिक नंबर 2। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? केस 2 होगा तो एक लॉन पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा। ऐसी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होती है जिसमें एक सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग में एक है, दूसरी साइड है ही नहीं है, तो वो रे बन गई। ठीक है, वो कोई ऐसी फिक्स ज्योमेट्री नहीं आएगी। तो इसमें कोई केस नहीं है। जो आपका स्टेरिक नंबर 4 था उसमें 3 केसेस टोटल, AB4, AB3 एंड AB2। जो आपका स्टेरिक नंबर था 3, उसमें 3 केस, उसमें 2 केसेस पॉसिबल, AB3 एंड AB2। इसमें ओनली 1 केस पॉसिबल। डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो। करेक्ट? Ma'am. Now the most important is the steric number 5. This is most important. हर बार क्वेश्चन इसी से लगता है। तो स्टेरिक नंबर 5 का क्या मतलब हुआ? स्टेरिक नंबर 5 हो गया आपका लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों का जो सम है वो 5 रहा होगा। ठीक है, और स्टेरिक नंबर 5 में आपके पास सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ए, और टाइप ए क्या रहेगी? लॉन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 5, तो 5 ओनली। दिस इज अ टाइप ए, जिसको हम बोलेंगे AB5 टाइप। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे PF5। PF5 को बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। पेंटाफ्लोराइड। पहले फॉस्फोरस को चेक करो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। दिस इज अ 3s2 and 3p3। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, and the valence shell electronic configuration is a 3s2 and the 3p3. So when you will write the box diagram, in the ground state, phosphorus is having the 2 electrons in the 3s orbital and the 3 electrons in the 3p orbitals. ओके, अब इसमें क्या एडवांटेज है ना फॉस्फोरस में? थर्ड शेल स्टार्ट है तो फॉस्फोरस के पास एक और अवेलेबिलिटी होगी, दैट इज अ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो हियर इट इज हैविंग द वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो जितने आपके पास मोनोवलेंट एटम है ना, उतने मोनोवलेंट सराउंडिंग एटम, उतने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट कराने हैं और उस हिसाब से एक्साइटेशन करानी है। तो PF5 में 5 मोनोवलेंट एटम है, बट टिल नाउ इन द ग्राउंड स्टेट इट इज हैविंग द 3 unpaired electrons only. So in the excited state, what would happen? One of the electron will get shifted to the high energy state. So this is a 3s. This is the 3p. And now it is the 3d.
So this is how the 5 electrons are arranged. And after the arrangement of the 5 electron, first step क्या है, ये सब आपस में mix हो जाएंगे. So the hybridization would be the sp3d. Now I am not going to make that hybridization orbital diagram and all, हम सीधा ही चलेंगे. क्या basics clear हो गया आपका? तो after the hybridization, after the orientation, third step is the bonding. तो 5 fluorine जो हैं, they are going to donate the 1 electron in each orbital. And now it is having the sp3d hybridization. This is the name of the hybridization. sp3d hybridization and the bond geometry लिख देते हैं पहले, फिर bond angle देंगे. Geometry here is a TBP. And what is the full form of TBP? This is Trigonal bipyramidal. This is called as a trigonal bipyramidal. ठीक है. And the bond angle in this case are obtained as the 3 bond angles are FPF 120 degree and 2 FPF bond angles are 90 degree. Let me show you. Is that clear, this slide? Let's check it out. This is a trigonal bipyramidal. अच्छा, one more thing is there. पहले इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं बताती हूँ. ये देखो ऐसे है ना, ये बिल्कुल TBP ही है अभी, बस मैं इसको ट्राइंगल को थोड़ा इस मैनर में मैंने लिख दिया है. तो अगर एक यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो दीज आर द सराउंडिंग एटम्स. तो ये तो हो गया आपके PF3 का स्ट्रक्चर. अब क्या हुआ, यहां तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है s प्लस px प्लस py. बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ये वाला. और ये बॉन्ड एंगल इन द प्लेन है, इनको FPF बॉन्ड एंगल बोलेंगे ना, FPF. और ये जो 3 FPF बॉन्ड एंगल्स है ना, these are called as a equatorial bond angles. Equatorial bond angles. Okay. And अब क्या हुआ, एक और हाइब्रिडाइजेशन हुई है जिसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया है. एक तो ये जिसको PZ बोलते हो, और एक दूसरा ये ऑर्बिटल जिसको DZ स्क्वायर बोलते हो, जिसमें ऐसे लॉब्स हैं प्लस और प्लस. तो ये हाइब्रिडाइजेशन है PD. ये PD हाइब्रिडाइजेशन है. देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, PZ और DZ स्क्वायर. बॉन्ड एंगल इसमें FPF ये 90 डिग्री है और ये लीनियर जाएगा आपका. दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर ज्योमेट्री. ठीक है. अब इन दोनों को मिक्स कर दो. तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है. फॉस्फोरस, उसको थोड़ा ट्रायंगल को ना वो बना लेते हैं ढंग से. तो ये हो गया इतना स्ट्रक्चर और ये हो गया अबव एंड बिलो द प्लेन. इसको इक्वेटोरियल बोलते थे ना, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल्स. एक्सियल का मतलब है कि वो प्लेन में नहीं है, इक्वेटोरियल का मतलब है कि वो प्लेन में है. दिस इज वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ रिंग. तो दिस इज 90 डिग्री. तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका. तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन मिक्स करके क्या बन गया, SP3 हो गए ना, SP3D हाइब्रिडाइजेशन. एंड टोटल ज्योमेट्री क्या बन गई आपकी, यहाँ पे थी इक्विलेटरल और एक्सियल को मिक्स करके यहाँ पे बन गई TPP, ट्रायगोनल बाइपिरामिड. ठीक है. और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे मैं ये वर्ड लिख भी देती हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. The hybridization where the two different bond angles are obtained.
the hybridization where two different bond angles are obtained. Angles are obtained is called non-equivalent hybridization. Non-equivalent hybridization. देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड एंगल 90 हैं और दो बॉन्ड एंगल, तीन बॉन्ड एंगल 120 हैं, दो बॉन्ड एंगल 90 हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इज दैट क्लियर? इस शीट में से कुछ पूछना तो नहीं है? No, ma'am. ओके ओके. No, ma'am. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई PF axial bond lengths are longer than PF equatorial. मतलब जो ये वाले बॉन्ड लेंथ है इसमें ना, जैसे मीथेन में हमने पढ़ा था कि इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन है. इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन से तो इक्वल बॉन्ड एंगल आते हैं. ये नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं आते. तो जो नॉन इक्वलेंट बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं आते, बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस होता है. अब ये जो आपके अप एंड डाउन वाला पोर्शन है, दिस वन, ठीक है, एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल वन, अबव एंड बिलो द प्लेन. तो ये जो पी एफ, इसको एक्सियल बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे पी एफ एक्सियल. ठीक है, और ये वाली को पढ़ेंगे पी एफ इक्वेटोरियल. तो पी एफ एक्सियल जो है वो ग्रेटर देन होती है पी एफ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से. मतलब डाउन एंड अबव वाले बॉन्ड लंबे हैं और इन द प्लेन वाले बॉन्ड छोटे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है? देखो आप रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड देखो, ये तीन बॉन्ड हैं, है ना, 120 पे. तो अगर आप टॉप वाले देखोगे तो टॉप वाला पीएफ बॉन्ड बाकी जो इन प्लेन में तीनों है उनसे 90 डिग्री अबव है, 90 डिग्री पे है. ऐसा प्लेन है ना, इस पे ये 90 डिग्री है. तो इसका मतलब है इसको 390 डिग्री रिपल्शंस अबव से हैं और इस वाले को भी, बिलो वाले को भी 390 डिग्री रिपल्शंस हैं. बट अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल वालों को खुद से तो रिपल्शंस है 120 पे. और हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था कि जब रिपल्शंस एट अ बॉन्ड एंगल 120 आए या उससे ग्रेटर आए तो उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए. तो रिपल्शंस एट एन एंगल ग्रेटर देन 120 कैन बी नेग्लेक्टेड. तो इन प्लेन वाली रिपल्शंस तो नेग्लेक्ट हो गई. अब आपके पास कौन सी रिपल्शंस बची इन तीनों के लिए? सिर्फ एक अबव 90 और एक बिलो 90. तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर काउंट किया जाए द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शंस, the magnitude of the repulsions experienced by PF axial bonds is greater than PF equatorial. So all the bond lengths in the PF5 are not equal. Axial bonds are longer than इक्वेटोरियल वंस. ओके, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड. मैम एक बार दोबारा बता दो.
बेटे जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड है ना, उनको किससे रिपल्शन हो रही है? ऊपर वाला बॉन्ड देखो तो इस पे ये सारे वो 90 डिग्री पे है इन तीनों से, उसे इन तीनों से रिपल्शन हो रही है। नीचे वाले को भी इससे, मतलब ये जो डाउनवर्ड वाला है इसको भी इससे रिपल्शन हो रही है, तीन से। बट अगर इक्वेटोरियल वाले देखोगे ना, इक्वेटोरियल वाले खुद में तो 120 बॉन्ड एंगल रखते हैं, और 120 पे रिपल्शंस इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, 100 के बाद रिपल्शंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एक 90 और एक नीड डाउनवर्ड वाला 90, तो इक्वेटोरियल वाले सिर्फ दो रिपल्शन फेस करते हैं, और जो एक्सियल वाले हैं वो तीन तीन रिपल्शन फेस करते हैं। तो जब रिपल्शन ज्यादा फेस होंगी तो दूर नहीं चला जाएगा बॉन्ड, मतलब पी एफ के इलेक्ट्रॉन एफ की तरफ चला जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पी एफ 5 को जब हम हीट करते हैं ना, तो पी एफ 3 प्लस F2 रिलीज होता है। अब इसका रीजन क्या है? ये वाले जो एक्सियल बॉन्ड है ना, ये वीक होते हैं। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना, देखो, बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond strength। जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना वो वीक होगा, जितना बॉन्ड आपका स्मॉल होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो इसलिए जो एक्सियल बॉन्ड है, रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं? फ्लोरीन की तरफ ऊपर चले जाते हैं, ये लंबा हो जाता है बॉन्ड। इसलिए जब PF5 को हीट करो तो ये कौन से दो फ्लोरीन हटे हैं इसमें? एक्सियल बॉन्ड लेंथ वाले। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ वाले हैं वो वाले दो फ्लोरीन इसमें से रिमूव हो जाते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। जब बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मैम कैन यू प्लीज रिपीट द सिडविक थ्योरी अगेन? Okay beta, that I will take when we will be dealing with the poll questions, then I will explain you. Next question. Next is on type AB4. Steric number will be 5. Lone pair plus bond pair is 5. Lone pair is 1 and the bond pair is 4. So this is 5 only. 1 plus 4 is 5. ठीक है, और इसकी जो एग्जाम्पल है that is SF4. The name of the SF4 is a sulfur tetrafluoride. When you will see the structure, sulfur का atomic number होता है 16. Electronic configuration of the sulfur is a 3s2 and the 3p4. And let us see, this is the 3s2 and this is the 3p4, and the advantage again it is having 1 peak and 3d orbital. ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं। मोनोवैलेंट एटम 4 हैं, 4 monovalent atoms are there, but now we are having the 2 unpaired electron. So one of the electron from this will shift to this orbital. Okay, so this is the 3s, this is the 3p, and this is the 3d. Okay, so this is a sp3d hybridization. sp3d hybridization. And in sp3d hybridization, after the hybridization, 4 of the fluorine atom will donate their 1 electron. ठीक है, यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा सा से लिख देते हैं। Okay, तो this is the hybridization sp3d, and after the hybridization देखिए कैसी स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर तो वही आएगी जब तक आपका ट्रायगोनल, हाँ अभी ये क्या एक्ट करेगा? हाँ, इसने उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया ना फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो दिस इज एक्टिंग एज अ लॉन पेयर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास 5 लोकेशंस आर अवेलेबल
in which the 3 locations are of the one type and the 2 locations are of the different type, then where to place a lone pair? Always remember, lone pair will always occupy the position with the higher bond angle, क्योंकि रिपल्शंस ज्यादा ना हो, क्योंकि लॉन पेयर डिलोकलाइज होता है, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है. लॉन पेयर ऑलवेज ऑक्युपाई द पोजीशन विद हाई बॉन्ड एंगल. हाई बॉन्ड एंगल, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है वहां पे लॉन पेयर को रखो. अब बॉन्ड एंगल एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कहाँ पे ज्यादा होता है इस क्वेश्चन में, इस ज्योमेट्री में? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? एक्सियल पे तो 90 डिग्री होता है, इक्वेटोरियल पे तो 120 डिग्री होता है. तो लॉन पेयर आप यहाँ रखोगे, बाकी सल्फर आपका यहाँ पे आएगा और 4 फ्लोरीन आएंगे ऐसे. These are the 4 fluorine atoms and this is a lone pair. Again we are applying the same concept. There will be the repulsion. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ग्रेटर देन होती है, तो ये वाले बॉन्ड एंगल जो अभी आपको एग्जैक्टली 90 दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे. और ये वाले जो अभी आपको 120 दिखाई दे रहे हैं, ये भी कुछ ऐसे हो जाएंगे. तो जो आपकी ज्योमेट्री रहेगी वो करेक्ट आंसर इसका डिस्टॉर्टेड है. बट इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द डिस्टॉर्टेड ओवर देयर, यू कैन राइट इट एज अ TBP also. Otherwise the correct answer is a distorted trigonal bipyramidal. And if you are talking about the bond angles are less than 120 degree and the less than 90 degree. तो उसका रीजन आपको बता ही दिया है कि ड्यू टू, ऐसे लिख लो, ड्यू टू द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, जो आपका बॉन्ड एंगल है नाउ दे आर डिस्टॉर्शन, इसलिए आएगा ना लेस देन 120 एंड लेस देन 90 डिग्री. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कैन वी वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस? हाँ, एक और बात बतानी है, जहां पे भी आपके पास लॉन पेयर आएगा ना, वहां पे आपको शेप भी लिख देनी है. मैं लास्ट केस में भी एक में लिख देती हूँ, वो आपको पता है बट स्टिल आई एम राइटिंग. जहाँ पे आपने ये पढ़ा था ना, देखो अब यहाँ पे ज्योमेट्री तो ठीक है, ये तो सही है, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर जहाँ पे भी लॉन पेयर आ गया ना, तो कई बार वो शेप पूछ लेता है उसकी. तो शेप इसकी बिल्कुल वाटर लाइक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो. लॉन पेयर का आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है शेप डिटर्मिनेशन में. शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर यूज होते हैं, और बॉन्ड पेयर के हिसाब से ये क्या है? वी शेप्ड. क्या बोल सकते हो? बेंट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हैं? एंगुलर. तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हो. जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा, चाहे कितने भी लॉन पेयर हो, तो वो आपका जाएगा वी शेप या बेंट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी लॉन पेयर वाला केस है, तो इट इज बेटर टू गिव द शेप ऑल्सो. तो ये तो ज्योमेट्री हो गई ना, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ज्योमेट्री पूछे या स्ट्रक्चर पूछे. शेप इसकी ना सी सॉ है. शेप इज अ सी सॉ, इट इज जस्ट लाइक अ स्विंग. जो पार्क में होते हैं ना छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स, देखो एक ऐसा है और 2 उसके ऊपर सीट्स लगी हुई हैं. कैन यू विजुअलाइज दिस वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is all about the AB4 type. Now let's check out in the same steric number. This is a type AB3. Steric number is 5 again. Lone pair plus bond pair is 5. But this time the lone pairs are 2 and the bond pair is 3. The answer is 5. 2 plus 3, this is equal to 5 only. And AB3 हो गया इसमें. Now what would happen? एग्जाम्पल इसकी है ClF3. बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि वॉट एवर द एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास, दैट आर द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल. इफ एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स कम्स इन द पेपर इन विच यू कैन कंपेयर द सेंट्रल एंड द सराउंडिंग एटम, तो वो सेम ही होगा. आप कंपेयर करो Cl के साथ कौन कौन से इस के ग्रुप में प्रेजेंट हैं. फ्लोरीन के इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये 2 हेलोजन ऐसे जुड़े होंगे, तो ये आपका ऐसी ही शेप ज्योमेट्री रखेगा. So ClF3 में central atom is the Cl, electronic configuration is the atomic number is 17, 3s2 and the 3p5.
So when you will see the ground state electronic configuration, this is a 3s, 2, 3, 4, and 5. This is a 3p. This is a 3d. So this is the ground state electronic configuration. In the excited state क्या होगा? How many unpaired electrons do you want? Because 3 है ना आपके पास monovalent atom. तो 3 unpaired electrons चाहिए, but here we are having the 1. So the excitation of the only 1 electron is needed. No need to give the excitation for these two. So in the excited state, this will be the 3s2 only. And 3p, this, 3d. And when you will mix them up, that will be sp3d hybridization. ठीक है, and sp3d hybridization हो गया. 3 unpaired electron जो आपके पास हैं क्लोरीन के, you can combine them with the 1 electrons for the fluorine, and these two which are not combining with the fluorine, these are acting as a lone pair of the electron. And again here the steric number is the 5. तो जब तक ये रहेगा तब तक आंसर यही आएगा. लॉन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड लगा दो, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, this is a distorted trigonal Yes, ma'am. bipiramidal, and after the distorted trigonal bipiramidal अब देख लें कि कहाँ पे लॉन पेयर को रखेंगे और कहाँ पे बॉन्ड पेयर को रखेंगे. तो this is the chlorine, and surrounding the chlorine there are the 2 lone pairs. So lone pair will occupy these positions which are equatorial, एंड बाकी फ्लोरीन को आप लगा दो बाकी जो पोजीशन पे है. अब इसमें 2 लॉन पेयर है तो 2 को तो आप यहाँ रखोगे, फिर एक पोजीशन बच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. In that position you can place your another fluorine atom, and after placing this fluorine atom, आप देखो अब इसमें कितना रिपल्शंस है. Here there is a repulsion between the 2 lone pair repulsion is there, and then is the lone pair bond pair repulsion is there. एंड फिर इससे क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल तो और कम हो जाएगा 90 डिग्री से, और ये 120 से भी, ये वाले भी 120 से कम हो जाएंगे. तो बॉन्ड एंगल यू कैन से sp3d हाइब्रिडाइजेशन डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, bond angle less than 90 degree and the less than 120 degree. And regarding the shape, what do you think, what would be the shape of this ClF3? T की तरह नहीं लग रहा? Ma'am, T shape. Yes. Shape for this is a T shaped. Okay. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Ma'am, 1 minute. ओके ओके. Ma'am, हो गया. ओके बेटा. Next is the this is the steric number 6 only, 5 only. लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 5. अभी तक हमने 1+4 का केस कर लिया, 2+3 का केस कर लिया, 3+2. और ये एग्जाम्पल फिर क्या हो जाएगी, AB2 टाइप. जैसे एग्जाम्पल हो गई आपकी XeF2. इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए. चलो बनाना है तो बॉक्स डायग्राम इसका भी बन जाएगा. देखो नोबल गैस है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बाकी एट द एंड ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट है. इसके बाद रेडन है बट वो तो रिएक्ट नहीं करती है ना. तो ये आ गया P एंड ये आ गया D. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा. तो दिस इज द S, this is P, this is D.
ये मिक्स हो जाएंगे, दैट विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 2 3। 3 would be the lone pairs, 3 would be the lone pair of electron। दो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, इनके साथ एक एक फ्लोरीन कंबाइन कर जाएगा, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, तो ये हो गया आपका XeF2। एंड बनाया कैसे जाए, अब जब तक इसको थोड़ा सा इसके साथ लिख देते हैं। जब तक sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तब तक ज्योमेट्री रहेगी TBP, and this is called as a distorted trigonal bipyramidal। मैं और लिख देती हूँ, वैसे ये ज्यादा बेटर आंसर है। बाकी अगर आप इसकी शेप, बॉन्ड एंगल की बात करो, शेप की बात करो, वो देखते हैं कैसे बनाओगे इसको। दिस इज अ जीनन। तो बाकी 3 लॉन पेयर हैं, तो अब तो तीनों को रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शंस, लॉन पेयर रिपल्शंस और ज्यादा होंगी। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से तो बॉन्ड एंगल फिर से लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री होगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शेप, बेंट तो नहीं है भाई, अगर Ma'am, T shape. टी भी नहीं है, टी कैसे आ गया? टी आप, लीनियर। I'm linear shape. हाँ शेप है इसकी लीनियर। आप इसमें लॉन पेयर मत देखो ना, शेप है इसकी लीनियर, दैट इज अ लीनियर शेप। ठीक है, Yes, ma'am. और इसका जो भी ऐसे होंगे, जैसे आपको पेपर में IF3 आ गया, तो दोनों हैलोजन है एंड F3 है, तो वो इसी शेप में आएंगे। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेरिक नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 5 वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट विल डू द डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और फिर लास्ट में MOT। अच्छा, किसी बच्चे ने अभी चैट बॉक्स में मेंशन किया था कि मैम सिडविक थ्योरी एक बार बता दूं, तो मैं एक बार बता देती हूँ। पहले तो इसका स्पेलिंग है ये SIDGVIC। सिडविक्स थ्योरी, सिडविक्स थ्योरी एज इट इज तो आपको देखो पोस्टुलेट तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये थियरी है रिलेटेड टू द मैक्सिमम कोवेलेंसी। मतलब हमने देखा था कि हाइपरवेलेंट स्पीशीज आर फॉर्मिंग, पे कोई भी स्पीशीज कितना कितना बॉन्ड बना रही है, अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रही है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो सिडविक्स थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी स्पीशीज अपनी वैलेंसी से बॉन्ड ज्यादा तब बनाएगी, जैसे फास्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 3 फ्लोरीन के साथ जोड़ना चाहिए, तब इसकी वैलेंसी 8 हो जाएगी। बट इट इज फॉर्मिंग द PF5 एज वेल, तो वाई इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड्स मोर देन इट्स वैलेंसी? तो इसके लिए इसने बोला कि जो आपका सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के पास होने चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल सबसे पहले। तो अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें शिफ्ट कर देगा। ठीक है, सेकंड उसने बोला था कि लेस ऑर्बिटल गैप होना चाहिए। लेस ऑर्बिटल गैप का मतलब क्या है? लेट अस सपोज कि फास्फोरस के साथ फ्लोरीन नहीं, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो अगर फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन लगे हुए होते तो वो कभी भी 5 नहीं लग सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। फ्लोरीन क्या करता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है फास्फोरस से, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फास्फोरस का साइज स्मॉल हो जाएगा। साइज स्मॉल होने का मतलब क्या होता है कि जो 3s 3p और 3d है उनमें गैप कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अच्छे से शिफ्ट हो जाता है। यही तो हम सब कर रहे हैं अभी। तो कभी भी PF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, PF5 करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, तो इन केसेस में वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं और एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। अदरवाइज उसमें इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते जितनी उसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिस स्टूडेंट ने पूछा था उसको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो लेट्स टेक अ पोल क्वेश्चन।
Most of the students have opted for the option number 2 and कईयों को ये 4 भी लग रहा है. Let's check it out the correct option. सी I3 नेगेटिव कैसे बना है? I3 नेगेटिव बना होगा I2 प्लस I नेगेटिव से. ठीक है, तो आप I नेगेटिव को सेंट्रल मानो, है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अब कम हो गई है, पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा आ गया. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है. नॉर्मली हेलोजन में 7 होते हैं, तो 8 में से एक बॉन्ड यहाँ बन गया, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और बाकी इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज ओवर होल. अगर मैंने इसकी शेप पूछी होती तो लीनियर आंसर सही था, तो लीनियर आंसर गलत है जो बहुत बच्चों ने दिया है. तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि जब तक आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे ना तब तक ज्योमेट्री ये रहेगी, और इसका जो शेप है वो लीनियर है. इसके जो बॉन्ड एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री रहेंगे. ये ऑप्शन करेक्ट था. Do this one. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था, बट आप कंफ्यूज हो गए हो इसके आंसर को लेके ना. अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी और ऐसे बनाई थी. पर बेटा आप ये क्यों भूल जाते हो कि अगर लॉन पेयर देख पूछे हैं तो बाकी वाले आयोडीन में भी तो काउंट करने हैं ना. तो इसमें जो लॉन पेयर होंगे ये भी काउंट होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इज अ करेक्ट आंसर. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, रेस्ट हैव ऑप्टेड फॉर 3. तो इतनी जल्दी आंसर नहीं मार्क कर देना अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर. इज इट क्लियर अबाउट दिस बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last question is
Yes, quickly submit your answer, beta. CpF4+ में फॉस्फोरस पे प्लस है ना, तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे तो बाकी मोनोवैलेंट एटम है, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा. ये ऑप्शन वाज करेक्ट. ओके. Yes, ma'am. Yes. So this is all about for the today. In the next class, we will